আপুনি বাৰু কেঁচা ঘৰত থাকে নেকি? আপুনিও বাৰু এটা চৰকাৰী ঘৰ বিচাৰি আছে নেকি? আপোনাক এটা পকী ঘৰৰ অত্যন্ত প্ৰয়োজন নেকি? তেনেহলে এতিয়াৰে পৰা চিন্তাৰ কোনো কাৰণ নাই, কিয়নো ৰাজ্যত নাথাকিব এটাও কেঁচা ঘৰ। ৰাজ্যত হদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈকে সকলোৰে ঘৰবোৰ হ'ব পকী ঘৰ। সকলো দৰিদ্ৰ লোকে লাভ কৰিব একোটাকৈ চৰকাৰী পকী ঘৰ। আৰু ইয়াৰ বাবে কেৱল মাত্ৰ এখন ফটো আৰু আধাৰ কাৰ্ড থাকিলে আপুনি লাভ কৰিব চৰকাৰী ঘৰ। আকৌ কৈছো, অত্যন্ত সহজ হৈ পৰিছে এতিয়া। কেৱল মাত্ৰ এখন আপোনাৰ ফটো আৰু আধাৰ কাৰ্ড, এই দুটা বস্তু থাকিলে আপুনি অতি সহজে লাভ কৰিব একোটা চৰকাৰী ঘৰ। চৰকাৰী ঘৰক লৈ এতিয়া বেছি আপুনি চিন্তা কৰি থাকিব নালাগে। চৰকাৰে আপোনাক ধন দিব, পকী ঘৰ বনাই দিব। ইয়াৰ বাবে কোনো ধৰণে আপুনি কাকুকে এটকা এটাও ঘুষ দিব নালাগে। চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আপোনাক দিয়া হ'ব একোটাকৈ পকী ঘৰ। কেনে ধৰণে আপুনি চৰকাৰী পকী ঘৰ লাভ কৰিব, কিছু নতুন নিয়ম জাৰি কৰা হৈছে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা, সকলোবোৰ সবিস্তাৰে এই মুহূৰ্তত জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এটা ভাল খবৰ লৈছো এই মুহূৰ্তত। আপোনাক বাৰু চৰকাৰী ঘৰ লাগিব নেকি? আপোনাক চৰকাৰী ঘৰ লাগিব নেকি? কোনে কোনে পাব চৰকাৰী ঘৰ? বৃহৎ ঘোষণা কৰা হৈছে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা। অসমৰ প্ৰতিজন লোকৰে থাকিব একোটাকৈ পকী ঘৰ। অসমৰ প্ৰত্যেকজন লোকে লাভ কৰিব এটা পকী ঘৰ। 3 লাখতকৈ অধিক লোকে পাব বিনামূলীয়া চৰকাৰী পকী ঘৰ। এই বছৰতে 3 লাখতকৈ অধিক লোকে লাভ কৰিব চৰকাৰী ঘৰ। 16,159 কোটি টকাৰ ইতিমধ্যে বিশেষ উপহাৰ দিয়া হৈছে। আধাৰ কাৰ্ড আৰু এখন ফটোৱে সলাই দিব পাৰে আপোনাৰ জীৱন। এতিয়াৰে পৰা পকী ঘৰক লৈ আপুনি চিন্তা নকৰিব। চৰকাৰী ঘৰ লাগে যদি আপুনি চিন্তা নকৰিব। 3,88,000 নতুন PMAY গৃহ নিৰ্মাণত অনুমোদন জনোৱা হৈছে কেন্দ্ৰৰ ফালৰ পৰা। 2025 বৰ্ষতে 3 লাখতকৈ অধিক চৰকাৰী ঘৰ নিৰ্মাণ কৰা হ'ব। আধাৰ কাৰ্ড থকা লোকেহে আবেদন কৰিব পাৰিব চৰকাৰী ঘৰৰ বাবে। যাৰ যাৰ আধাৰ কাৰ্ড আছে আপুনি PMAY ঘৰ লাভ কৰিবলৈ আবেদন কৰিব পাৰিব। দুচকীয়া যদি বাহন আছে আপোনাৰ ঘৰত, তেতিয়া আপুনি চৰকাৰী ঘৰ লাভ কৰিব। মাহিলী উপাৰ্জন যদি 15,000 টকা আপোনাৰ, তেতিয়াও আপুনি চৰকাৰী ঘৰ লাভ কৰিব। 5 একৰ মাটি যদি আছে আপোনাৰ, তেতিয়াও আপুনি বিনামূলীয়া চৰকাৰী ঘৰ লাভ কৰিব। 3,88,000 চৰকাৰী ঘৰৰ বাবে খৰচ কৰিব 9,726 কোটি টকা। 90% খৰচ কৰিব মোদী চৰকাৰে আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে খৰচ কৰিব ইয়াৰ 10%। জৰীপত নাম অন্তৰ্ভুক্ত নোহোৱাসকলৰ বাবে পুনৰ জৰীপ চলোৱা হ'ব। কোনেও চিন্তা কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই। এই জৰীপৰ বাবে কোনো চৰকাৰী বিষয়াৰ প্ৰয়োজন নাই। ইয়াৰ বাবে আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকল আছে, তেওঁলোকে জৰীপ চলাব আৰু এতিয়া অতি সহজে আপুনি লাভ কৰিব একোটা পকী ঘৰ। এই মুহূৰ্তত এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনাই আছো, যিহেতু ৰাজ্যবাসীক এটা ভাল খবৰ দিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে তথা মোদী চৰকাৰে। চৰকাৰী ঘৰক লৈ বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ গুণাগথা চলি থাকে। বহু দৰিদ্ৰ লোকে এতিয়াও চৰকাৰী ঘৰ লাভ কৰা নাই, বা কোনো বহু মধ্যবিত্ত লোকে এতিয়াও চৰকাৰী ঘৰ লাভ কৰা নাই। আগতে দুচকীয়া বাহন থাকিলে, 4চকীয়া বাহন থাকিলে সেই ঘৰৰ মানুহে চৰকাৰী ঘৰ নাপায়। যদি মাহিলী 15,000 টকা উপাৰ্জন, তেতিয়াও চৰকাৰী ঘৰ নাপায়। যদি 5 একৰ মাটি আছে সেইগৰাকী ব্যক্তিৰ, তেতিয়াও চৰকাৰী ঘৰৰ পৰা বঞ্চিত হ'বলগীয়া হয়। কিন্তু এতিয়া আৰু চিন্তাৰ কোনো কাৰণ নাই। এখন ফটো আৰু আধাৰ কাৰ্ড থাকিলে আপুনি লাভ কৰিব চৰকাৰী ঘৰ। আপোনাৰ ঘৰত যদি দুচকীয়া বাহন আছে, 4চকীয়া বাহন আছে, তেতিয়া আপুনি চৰকাৰী ঘৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। চৰকাৰী ঘৰক লৈ আপুনি তিল মানুহ এতিয়া আৰু চিন্তা কৰিব নালাগে। আধাৰ কাৰ্ড যদি আছে আপোনাৰ, তেনেহ'লে চৰকাৰী ঘৰৰ বাবে আবেদন কৰক। আপোনাৰ মাহিলী উপাৰ্জন 15,000 টকা, তেতিয়াও আপুনি আবেদন কৰক। আপোনাৰ ঘৰত যদি দুচকীয়া বাহন আছে, 4চকীয়া বাহন আছে, তেতিয়াও আপুনি চৰকাৰী ঘৰৰ বাবে আবেদন কৰক। আকৌ কৈছো, আপোনাৰ যদি 5 একৰ মাটিও আছে, তেতিয়াও আপুনি চৰকাৰী ঘৰ লাভ কৰিবৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। হদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ এটাও কেঁচা ঘৰ নাথাকিব। সমগ্ৰ অসমতে থাকিব কেৱল মাত্ৰ পকী ঘৰ। এই বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে খুদ ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। সমান্তৰালকৈ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী শিৱৰাজ সিং চৌহানৰ ফালৰ পৰা কোৱা হৈছে যে অসমত এটাও কেঁচা ঘৰ নাথাকিব। অসমত সকলোৰে থাকিব একোটাকৈ পকী ঘৰ। এটা পকী ঘৰ পাবলৈ কোনো ধৰণৰ চিন্তা কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই।
সকলোৱে লাভ কৰিব একোটা পকী ঘৰ। কেৱল মাত্ৰ এখন ফটো আৰু আধাৰ কাৰ্ড থাকিলে আপুনি লাভ কৰিব চৰকাৰী ঘৰ। এই বৃহৎ ঘোষণা কৰা হৈছে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা। এই মুহূৰ্তত মন্তব্য আছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আৰু কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী শিৱৰাজ সিং চৌহানৰ। কোনে কি কৈছে চৰকাৰী ঘৰ সন্দৰ্ভত মন দি শুনক। प्रधानमंत्री आवास गृहर अनुमोदन करे। मैं আজি मंत्री डांगरिया कब खोजो जे हमारे प्रदेश में आपने अब तक हमें 20,91,887 प्रधानमंत्री आवास गृह का स्वीकृति दिए थे और हमने 19,57,777 गृह का अभी तक काम कंप्लीट किया हूं और थोड़ी ही आवास हमारे करने में बाकी है। लेकिन हमने जो जियो टैग किए थे वो जियो टैगिंग का बाद हमारे पास 8 लाख बेनिफिशियरी का नाम है, जिसको अभी हम आवास देने में असमर्थ है। लेकिन थोड़ी ही दिन पहले आपने 1,71,000 नया आवास का स्वीकृति दिए थे और लगभग और आगे जाके अगर मुझे 6 लाख घर मिल जाता हूं तो पहला चरण में जितना आवास का जियो टैगिंग हुए थे सकलोए एकোटाকৈ घर पाई যাব। अर्थात আজি আমাৰ অসমৰ কাৰণে আৰু যদি আমি 6 লাখ ঘৰ পাওঁ তেতিয়াহলে যিসকলে জিও ট্যাগিং কৰি থৈ দিছিলে সকলোৱে ঘৰ পাবলৈ সক্ষম হ'ব। मैं शिवराज सिंह चौहान जी आज हमारे बीच में उपस्थित है। मैं असम वासियों का ओर से आपको यही निवेदन करूंगा कि जब भी आपका व्यवस्था होते हैं तब हमें और 6 लाख गृह का अनुमोदन दीजिए, घर का अनुमोदन दीजिए, तब हमारे पहला सूची समाप्त हो जाएंगे। साथ में मेरा आपके लिए और एक विनम्र निवेदन है। अभी आपने प्रधानमंत्री आवास योजना का जो न्यूनतम मानदंड है उसको काफी आपने घटाया है और अभी नया लोगों को भी घर मिलने का उम्मीद जागा है, इसलिए आपने इनका जो मानदंड है ये थोड़ा आपने उदारीकरण किए हैं। मेरा आपसे एक निवेदन है, हमेशा ये एक कंप्लेन होते हैं कि जो हम जियो टैगिंग करता हूं वो समय हमारे अधिकारी का ऊपर लोगों का कंप्लेन होते हैं कि जब भी हम लोग जाते हैं कुछ ना कुछ हिताधिकारी से, बेनिफिशियरी से हम लोग रिश्वत भी लेता हूं। सच है झूठ है अलग बात है, ऐसा भी कंप्लेन रहते हैं। इसीलिए मैं आपको निवेदन करता हूं, इस बार असम को एक इजाजत दीजिए। हमारा महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप से ही इस बार हम जियो टैगिंग करवाना चाहता हूं। अर्थात मैं ठीक है कोई सुने ना, এই বাৰ আমাৰ জিও ট্যাগিং মহিলা আত্মসহায়ক গ্ৰুপে নিজে যদি কৰি দিয়ে তেতিয়া কোনেও মাজত টকা খাব নোৱাৰে, সকলো দুখীয়া মানুহে ঘৰ নিজে নিজে পাব। আৰু সেই কাৰণে मैं अनुरोध करिसु असम को एक इजाजत देके आप देखिए, अगर काम अच्छा होते हैं बाकी देश में भी आप कर पाएगा। कम से कम असम में इस बार जियो टैगिंग हमारे जो माताओं है उनको करने का इजाजत दीजिए, हम लोग अच्छा काम करके आपको दिखाऊंगा। मेरा एग्रीकल्चर सेक्टर में 2 निवेदन है। पहले जो हमारे खेती है ये बांध, लेकिन ग्रामीण विकास मंत्री बनने के बाद मामा भी पहली बार असम में आया है। हेमंत दा ने कहा अभी कि ये मकान तो बन गए 20 लाख, लेकिन जरूरत अभी और भी है। आप बताओ बहनों और भाइयों, हर गरीब का पक्का घर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बताओ, होना चाहिए कि नहीं?
होना चाहिए। तो दादा कह रहे हैं अभी तो आवास प्लस की सूची में से ही कुछ बचे हैं, दादा जो बन गया अब उनकी बात नहीं करूंगा, लेकिन आपने जो बताया और मैंने जानकारी ली, उस जानकारी के हिसाब से अभी 7,76,000 मकान उस सूची में से और बनना है। और इसलिए आज ही 3,88,000 मकान तत्काल हम स्वीकृत कर रहे हैं असम के गरीबों के लिए। मेरे अधिकारी यहां बैठे और ये कह के नहीं करूंगा, दादा भी आपको चिट्ठी भी देने वाला हूं, क्योंकि आपने पहले कह दी थी कि आओ तो कुछ लेके आना, तो लेके आया हूं। और 3,88,000 नहीं दादा, 3,88,000 अभी इसी वित्तीय वर्ष में, अगले महीने किस्त जारी कर सकते हैं आप, और उसके बाद अप्रैल के महीने में अगला वित्तीय वर्ष शुरू होते ही 3,88,000 और देके सूची को पूरा कर दिया जाएगा। आवास प्लस की सूची से एक भी लाभार्थी वंचित नहीं रहेगा। हेमंत विश्व शर्मा जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से यह चमत्कार होगा। इतने मकान एक साथ कभी नहीं बने। और इतना और बताता हूं कि इन दोनों में पैसा कितना लगेगा। आज जो मकान हम देंगे, जो मैंने घोषित किया है, उसमें 9,726 करोड़ रुपए की कुल राशि लगेगी, दोनों मिला के आज के। और जो मैंने अनाउंस किया अगले वित्तीय वर्ष के 16,159 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा गरीबों के मकान बनाने के लिए। और दादा इसमें से 90% केंद्र सरकार का, 10% आपका, थोड़ा हमारा थोड़ा तुम्हारा, गरीबों का घर बन जाएगा, उनकी जिंदगी सफल और सार्थक हो जाएगी। लेकिन दादा यहीं तक नहीं रुके, उन्हें कहा भी तो कई रह गए, सर्वे में नाम छूट गए। तो मेरे बहनों और भाइयों, आप भी ध्यान से सुनना और बाकी को सुना भी देना कि जो मकान बचे हैं प्रधानमंत्री जी ने तय कर लिया है। सरकार बनते ही तीसरी बार उन्होंने ये तय किया था कि गरीबों के लिए 3 करोड़ घर और बनाए जाएंगे, 1 करोड़ शहर में और 2 करोड़ गांव में। तो जो छूट गए, बताओ भी छूट गए कि नहीं? कई लोग छूटे हैं कि नहीं? कई लोग छूटे हैं। तो अब जो छूटे हैं वो भी नहीं छूटेंगे। अब नया सर्वे शुरू किया जा रहा है, फिर से जो छूट गए हैं उनका नाम जोड़ने के लिए नया सर्वे। और नए सर्वे में भी 3 संशोधन किए। दादा 3 संशोधन किए हमने, रणजीत जी भी सुन रहे हैं। नंबर 1, यहां लखपति दीदी अभियान चल रहा है। पहले पीएम आवास योजना में यह तय कर दिया था कि 10,000 रुपया हर महीने से ज्यादा जिसकी आमदनी होगी उसको मकान की पात्रता नहीं रहेगी। अब 10,000 रुपया तो हमारी लखपति दीदियां ऐसे ही कमा लेती है। अगर इसी सीमा को मान लिया तो ये तो मकान की दौड़ से बाहर हो जाएंगी। और इसलिए तय किया कि 10,000 नहीं, 15,000 रुपए तक भी हर महीना कमाए तो भी मकान उनको दिए जाएंगे। सर्वे में उनका नाम जोड़ा जाएगा। एक बात और थी पुराने सर्वे में कि अगर किसी के पास मोटरसाइकिल 2 व्हीलर अगर है तो उसको मकान नहीं दिया जाएगा। अब 2 व्हीलर तो हर एक के पास है। गरीब भी मजदूरी करने जाता है तो आजकल तो मोटरसाइकिल पर बैठ के ही जाता है, तो 2 व्हीलर में तो कई बाहर हो जाएंगे। इसलिए हमने फैसला किया है कि 2 व्हीलर जिसके पास होंगे उसको भी मकान दिया जाएगा। और तीसरी चीज, और छोटे छोटे किसानों ने क्या, उनका क्या दोष है? 2.5 एकड़ तक सिंचित जमीन वाले और 5 एकड़ तक अनएरिगेटेड असिंचित जमीन वाले जो किसान हैं उनको भी घर दिए जाएंगे ताकि छोटे छोटे किसानों को भी घर मिल सके। अब ये 3 शर्तें और हटा के अब हम सर्वे करेंगे। लेकिन दादा सही सही बोलते हैं, कोई चीज छुपाते नहीं है। उन्होंने कहा कि कई बार नीचे जो सर्वे करने टीम जाती है वो ही गड़बड़ कर देती है। अब ये गड़बड़ बिल्कुल निर्मूल होनी चाहिए और उसके लिए 2 काम हम कर रहे हैं। एक तो
सर्वे करता है अमला, मतलब रेवेन्यू का हो, पंचायत ग्रामीण विकास का हो, लेकिन अब हितग्राही जिसके पास घर नहीं है, कच्चा घर है, वो खुद भी सर्वे कर सकता है। मेरी बात सुनी कि नहीं आपने? खुद भी सर्वे कर सकता है। नहीं, कई के नाम छोड़ देते हैं। कई तरह के परिवर्तन हमने किए थे, जैसे टीन की पहले छत होती थी तो कहते थे इसको मकान नहीं मिलेगा तो पक्का है, वो भी अब कच्चे की श्रेणी में है, उसमें भी कई मकान मिले। लेकिन मैं सर्वे की बात कर रहा था। आपके पास मोबाइल होना चाहिए, आधार नंबर होना चाहिए।